Good morning, everybody. Good morning, ma'am. How are you all? I am fine, ma'am. Okay, children. Happy to see you. चलिए आज सेशन शुरू करें. Shall we start? Okay. So what we did in the previous session, we are going to continue that today. हमने क्या किया था last session में? Do anybody remember that? Anybody? मैम ये पिक्चर को देख के हम Yes. मैम vocabulary. Yes. What were we were learning vocabulary, right? मैम vocabulary. Yeah, that is vocabulary. Okay. We are going to continue that. चलिए तो सेशन शुरू करते हैं like we did the day before. Okay. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? Again you are going to recite A to Z. We have done, I guess we are done till E, or we had done till D. What was the last alphabet? Sorry. E. Okay. तो E तक सबके I guess जो words थे, sentence थे, वो clear हो गए? D. Sorry, I'm not getting. Okay. Oh, we did D. Yes, we did D last time. Okay, so we are going to continue with E. Okay, so who is this? Who is sitting? I guess this is Lovely. Who is sitting at the most corner side? Yes, Lovely. So please start it with E. We are going to start with E today. Okay. Deepika, please E से start कीजिए and then later on F and next and next. Okay, we are just going to say the alphabets first. Okay. E. Yes. E. Please have a seat. F. Yes. G. Yes. H. Yes. J. K. L. L. N. Okay, fine, class. You have till O. Okay, so we are going to take it till O. Okay. तो जैसे हमने लास्ट सेशन में किया था, first we are going to write the word. We are going to write the alphabet first. Then we are going to write the word, and then we are going to form a sentence out of it. Okay. चलिए. So let us begin. तो सबसे पहला alphabet that we are going to have is E. Okay. Class, are you able to see the picture? No, ma'am. Is it visible now? Yes, ma'am. Yes, class. D was done. Yes. Now this alphabet. What is this? Exercise. Yes. I guess you have heard the word right there. This is exercise. Okay. So write it. Exercise. And everybody is going to write a sentence of exercise. Yes, class. Is it done? Yes, Okay. Let's move towards the next alphabet. Yes. So what alphabet is it? This is. ma'am. And what is the verb in the yes, fly. But we can also say fly, but यहाँ पर fly नहीं है. We are using it as a verb.
We are using it as flight. Okay, flight का मतलब होता है उड़ना. Fly also means उड़ना and kite also means उड़ना. Fine. Yes, ma'am. Noted. And साथ साथ सेंटेंस भी बनाते रहिए. Okay. Okay, ma'am. और आपको सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग बनाने हैं कि आपको पिक्चर में बर्ड फ्लाई करती दिख रही है, द बर्ड इज हैविंग इट्स फ्लाइट, ऐसे ऐसे नहीं लिखेंगे. आप अपना खुद का सेंटेंस भी बना सकते हैं. I'm done. Done, ma'am. Give me a second please. Yes, class, let's move towards the next alphabet. Yes, this is, I'm dog. yes, but this is a dog, but dog does not start with G, right? Yes, ma'am. है ना, तो you have to form a word. Okay, let me help you. Let me give you a hint. अच्छा, आपको ये डॉग कैसा दिख रहा है? He is, how is he is sad or he is weeping or something else. Happy. Yes, तो happy का ये एक और synonym होता है, like you know, जब sorry, class, I don't understand what you are saying. Glad. Yes, you can also say glad. पर glad का मतलब जो होता है, glad का मतलब सी, अगर glad का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई आपके लिए कुछ करता है, अच्छा करता है, तो आप glad बोल सकते हैं. तब आप जो खुश होते हैं, that is called glad. बट यहाँ पे जरूरी नहीं है कि डॉग के लिए किसी ने कुछ अच्छा किया हो, है ना. You can also say glad. Very nice, everybody. Please have a round of applause for yourself. I appreciate it. कि आपको पता है glad. Very good. ठीक है, बट देयर इज ऑल्सो अ वर्ड, देयर इज ऑल्सो अ वर्ड दैट स्टार्ट्स विद जी और उसका मतलब भी खुश होना ही होता है, एंड दैट इज ग्ली. GLEE. इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? हाउ इज इट प्रोनाउंस? एज ग्ली. ओके क्लास, रिपीट विद मी. व्हाट इज इट? Glee. Yes, and glee means being happy. Is class done? Yes, ma'am. Okay. Yes. Next alphabet. Yes. Any guesses? कौन सा alphabet है? Which alphabet is this? H. तो H से क्या आपको पिक्चर में शो हो रहा है? What can be this word? Happy. या बट क्या ये हैप्पी है? No. हाँ, तो yes, laughing, but does laughing start with H? No, ma'am. No. तो अब आइडेंटिफाई कीजिए, कोशिश कीजिए. राइट, यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक. ये लाफ से रिलेटेड ही है, लाफ के जैसा ही कुछ वर्ड है, बट दिस स्टार्ट्स विद H. Have you heard the word humor? Humor, sense of humor. देखिए, जब कोई बहुत अच्छा मजाक करता है ना, कोई भी इंसान, तो हम कहते हैं कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. ह्यूमर का मतलब होता है हंसना, लाफ्टर, या किसी को हंसाना. तो दिस इज ह्यूमर. ओके, ह्यूमर का मतलब होता है मजाक. सिर्फ जब हम मजाक होता है तो वी लाफ अ लॉट, तो दिस इज ह्यूमर. और ह्यूमर का मीनिंग भी लिख लीजिएगा. ह्यूमर मीन्स मजाक या लाफिंग अ लॉट.
And class, remember that you are also going to form sentence with these words. मैं अभी पूछने वाली हूँ. Once the session gets over, once the first round gets over, till we reach O तक, जब तक हम पहुंचेंगे तब तक आपको के sentences तैयार करने हैं. हम इसको हिंदी में क्या बनाएंगे? Sorry. No. That's done. Yes, Shall we move ahead towards the next alphabet? The next word is, you can write HUMOUR. Done? Yes, ma'am. Yes. What is this? Sorry. Idea. This can be the word, but क्या ये idea अच्छा, अगर हमें कोई idea आता है तो क्या हम ऐसे sad हुए रहते हैं बिना किसी काम करे हुए? Do you think that idea is the right word for this picture? तो थोड़ा guess कीजिए. अच्छा, तब हमारे पास कोई काम होता है तो हम बहुत busy होते हैं, right? And let me give you a hint कि ये word जो है जो इस picture में है वो busy का उल्टा है. जब हम बिजी होते हैं तो हम कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, राइट? जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? Any guesses? Anybody? Plus this is called idle. IDLE. Idle का मतलब होता है बिना किसी काम के ऐसे ही बैठे रहना. फाइन. तो ये बेचारा बैठा हुआ है. He is sitting idle. ये जो लड़का है, the boy is sitting here. He is not having any work and he is sitting idly. Okay? यानी हम इसे आलसी भी बोलते हैं in English. Sorry, in Hindi. Okay? You can write आलसी bracket. I'm done. I'm done. Done, class, everybody? No, ma'am. Okay, right. Class is done. Shall we move on? Okay, completed. I'm done. I'm done. Okay, class, is there anybody जिसका complete नहीं हुआ है? No, ma'am. Shall we go ahead? Yes. अब ये तो बहुत ही ज्यादा आसानी से पहचाना जाने वाला है. Yes, this is Jewelry. yes, but आपका pronunciation is not correct. आपने कहा jewelry. It is not jewelry. It is jewelry. How is it pronounced as jewelry? Okay. Repeat with me. What is it? It is jewelry. What is it? Jewelry. Yes. अब जब जो देखिए जो jewelry बनाता है उसको क्या कहते हैं? That is called a jeweler. Okay. Generally अगर आप जैसे इसको ज्वेलरी बोल रहे हैं तो उसको ज्वेलर बोलेंगे जो बना रहा है. But that is not the correct pronunciation. It is jeweler. It is not jeweler. It is jeweler. Okay. It is jeweler. जैसे ये ज्वेलरी है तो ज्वेलरी बनाने वाला है jeweler. Okay. Yes, ma'am. And what is the correct spelling? That is JEWELLERY. देखिए इंग्लिश में जो होती है ना. अच्छा क्लास, listen to me first. ध्यान से सुनिए. इंग्लिश जो होती है ना वो अलग अलग कंट्रीज की लैंग्वेज है. आपको इंग्लिश मिलेगी, आपको ब्रिटेन में इंग्लिश मिलेगी, आपको अलग अलग देशों में इंग्लिश मिलती है. तो अलग अलग जगह इसकी अलग अलग स्पेलिंग होती है. बट जो इंडिया में चलती है वो ये है JEWELLERY. एंड हाउ इज इट प्रोनाउंस एज? Jewelry. No, again, what you said jewelry. It is not jewelry. It is jewelry. Please repeat it once again. What is it? It is jewelry. Okay. और जो jewelry बनाता है वो क्या कहलाता है? That person is called
Jeweler. What is it called? Jeweler. Okay, class done? Yes, ma'am. Okay, and let me remind you once again, you have to form the sentence as well. Okay? Okay. Yes. Yes. Knife. Yes, knife. And what is the spelling for And what knife? is the spelling for knife? K-N-I-F-E. Very fine. Nice. Right, knife. अच्छा, इससे मुझे एक बात ध्यान आती है, जैसे हम जैसे हम इंग्लिश में गो का जो पास्ट फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं? गो इज कॉल्ड वेंट, राइट? कहते हैं। पास्ट फॉर्म्स पढ़ी है आपने कभी? जैसे ड्रॉ का ड्रू, राइट का रोट, पढ़ा है? हैव यू एवर रेड इट? क्लास प्लीज से यस और नो, क्या आपने कभी वर्ब के फॉर्म्स? No, ma'am. No, ma'am. Okay, so we are going to take that too in the next sessions, in the upcoming session parts. इन्हें भी लेंगे आगे। देखिए, कट जो होता है वो पास्ट फॉर्म में भी कट ही रहता है। ओके, इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जो पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जैसे राइट का रोट हो जाता है, गो का वेंट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। वर्ब्स यानी काम होते हैं जो प्रेजेंट फॉर्म में कुछ और होते हैं, पास्ट फॉर्म में कुछ और होते हैं। लेकिन कट जो नाइफ क्या करता है, एंड कट एक ऐसा वर्ब है जो कभी भी चेंज नहीं होता। वो प्रेजेंट में भी कट रहता है, वो पास्ट में भी कट होता है, और फ्यूचर में भी वो कट ही आता है। फाइन, डन विद दिस वर्ड? Yes, ma'am. ओके, शैल वी मूव अहेड? Yes, ma'am. क्लास, शैल वी मूव अहेड? Yes, ma'am. ओके, तो next alphabet, what is it? Lemon juice. Yes, what is it? Lemon. What is the lemon juice called? ये जो ग्लास में जो टम्बलर है, जो टम्बलर आपको दिख रहा है, उसके अंदर क्या है? इज इट द सेम लेमन? अच्छा, गर्मियों में हम इसे बहुत ज्यादा पीते हैं। एनीबडी हिंदी में बताइए। Yes, नींबू पानी। And what do we call नींबू पानी English? In English, what do we call a नींबू पानी in English? Lemon juice. Yes, lemon juice is also fine, but lemon juice का मतलब होता है नींबू का रस। Is it नींबू का रस और नींबू पानी? नींबू पानी। Okay, lemon water, you just translated it, नींबू का lemon and पानी का water. Okay, but this is not the correct word. This is not the correct word for नींबू पानी. What is it called? It is called lemonade. What is it called? Lemonade. Okay, class fine? Fine? Getting my point? What is नींबू पानी called in English? It is called लेमन जूस नहीं बोलेंगे। ओके, क्योंकि लेमन जूस क्या होता है, आपने नींबू को निचोड़ा और उसका रस जो आपके पास होता है, दैट इज जूस। बट दिस इज नॉट जूस। हम उस जूस को किस में मिलाते हैं? पानी में मिलाते हैं, एंड देन वी ऑल्सो ऐड शुगर, राइट? तो लेमनेड इज डिफरेंट एंड लेमन जूस इज डिफरेंट। ओके क्लास? ओके, तो जब नेक्स्ट टाइम आपके पेरेंट्स आपको नींबू पानी बनाने के लिए बोलेंगे या फिर शिकंजी बनाने के लिए बोलेंगे, तो यू विल नॉट से शिकंजी, यू विल से व्हाट यू विल से? Lemonade. Lemonade is, what is lemonade called in Hindi? It is known as नींबू पानी. Okay, you can also say शिकंजी. Fine. Okay, class, is it done? Shall we move ahead? Okay, so what is the next alphabet? What it should be? क्या होना चाहिए? What alphabet is it first? पहले ही बताइए alphabet क्या है? Mosquito. Mosquito, but does it look like a mosquito? Is it a mosquito? No, this is not a mosquito, but this starts from M. अब बताइए क्या हो सकता है? I don't know. And no, I don't know.
Sorry, I don't know. we don't know. Okay, class. This is अच्छा हिंदी में बोला जाता है पतंगे. Have you ever seen कि गर्मियों में क्या होता है कि जब हम घर बंद कर देते हैं, like we shut down the doors of our home शाम के टाइम पे, उस टाइम पे ज्यादातर ये जो होते हैं पतंगे, ये बल्ब्स जो होते हैं हमारे घर के एलईडी जो होते हैं उनके आसपास घूमते रहते हैं. तो दीज आर कॉल्ड तीज पतंगे. ओके, तो इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है मॉथ. दिखते हैं बटरफ्लाई के जैसे ही है, लेकिन ये बटरफ्लाई होते नहीं है. Okay, so what is it? This is a moth. How is it pronounced as? Yes, what is it, class? Repeat with me. What is it? It is? I'm done. Everybody? Done? Yes. Okay, so shall we move towards the next alphabet? Yes, ma'am. Okay, class. And the next one. Class, please wait a moment. Yes, this is nails, है ना? जो कील होती है, जो लोहे की कील होती है, that is called a nail. That one एक single है तो that is called a nail. Multiple है because you are seeing multiple nails over the picture. तो वहाँ पर क्या आएगा? Nails. Okay, this is also a nail that you are having on your finger. नाखून भी nail ही होता है. And जो कील होती है that is also called nail. Okay. I'm done. Yes, class, is it done? Yes, ma'am. Okay, class. Next alphabet. Yes. This might be a little tricky for you, but I think that anybody of you would be guessing it. Okay, let me give you a hint. Are you seeing the cursor over the screen? क्या वो arrow visible है आपको screen पर? Yes, ma'am. Okay, तो अच्छा ये बताइए, what is it this area called? ये जो area आपको दिख रहा है, where I'm scrolling up the cursor, where what is it called? What is this? Australia. Sorry. India. Yes, this is India, right? Okay, this is India. और इंडिया के नीचे ये जो इतना सारा ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, what is it? Yes, very good. और इस ओशन का नाम क्या है? Yes. हमारी कंट्री, आई गेस क्लास मैंने आपको ये पहले भी बताया है. आई थिंक दैट आई हैव टोल्ड यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग. देखिए हमारी कंट्री के नीचे, देखिए ये हमारी कंट्री है, दिस इज आवर कंट्री इंडिया. और ये जो इतना बड़ा आपको पानी जैसे दिख रहा है, दिस इज एन ओशन. ओके, और पूरी दुनिया में कितने ओशंस हैं? एनीबॉडी नो दैट? पूरी दुनिया में कितने ओशंस हैं? देयर आर 75%. सॉरी 75%. 75% तो पानी है. दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट. बट मैं पूछ रही हूँ कि कितने ओशंस हमारी अर्थ पर अवेलेबल हैं? हाउ मेनी ओशंस आर देयर? एनीबॉडी यू नो? कितनी बड़ी है? एज आई थिंक दीपिका हैज सेड दिस दैट कि 75% है, और एनीबॉडी एल्स हैज सेड? देखिए एज वी ऑलरेडी टोल्ड कि हमारी अर्थ पर 75% पानी है, बट हमारी अर्थ पर केवल 5 ओशंस है. ओशंस का मतलब होता है बहुत ही बड़े पानी की बॉडीज, बहुत बड़ी बड़ी पानी की बॉडीज होती है. ओके, तो ये भी एक बॉडी है, ये भी ऐसा ही एक समुद्र टाइप है, समुद्र है. एंड दैट इज नोन एज इंडियन ओशन. ठीक है, 5 ओशंस है. हाउ मेनी ओशंस आर देयर? देयर आर 5 ओशंस. और ये वाला जो है, ये जो आपको दिख रहा है, व्हाट यू आर सीइंग हियर, इसको हम कहते हैं इंडियन ओशन, क्योंकि इंडिया के नीचे है तो इट इज कॉल्ड द इंडियन ओशन. और पूरी दुनिया में इकलौता ही ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री पर है, और वो किसकी, कौन सी कंट्री पर है? इंडिया, यानी हमारे देश पर. हिंदी में हम इसे कहते हैं हिंद महासागर. इंग्लिश में भी कॉल इट इंडियन ओशन. बट द वर्ड दैट यू हैव लर्न टुडे इज ओ स्टैंड्स फॉर ओशन. Okay, and how is it? Okay, class, इसका pronunciation कैसे होगा? How will we pronounce it? OCEAN. Osh. What? Does anybody please stand up and say so? Ocean.
Ocean. Okay, class. This is not ocean. This is ocean. Okay, ocean. Okay, ocean. How? What is it pronounced at? What is it? It is ocean. Ocean. Okay. Class, repeat with me. What is it? Okay. I guess this is done for the first round. सभी बच्चों को अपना alphabet मिल गया है? Okay. Are we good to go with the sentences? Have you all written it, or do you need some time for preparing the sentences? I'm done. Sentences form हो गए? Yes, ma'am. Okay. अब ध्यान रखिएगा कि जब मैं बुलाऊंगी, you should be coming up with your alphabet. Fine? Okay, ma'am. Okay. Okay. So lovely. Have you written the sentence? Your alphabet was? No, no. I am asking from Lovely. Lovely, can you have you written the sentence? Okay, so what alphabet was yours? I guess it was J. Right? Hello, Lovely, can you please come ahead? I'm not getting your voice. Yes, Lovely. No, you are fine. You are visible. You are visible. Yes. Ram is the idol. Yes. Ram. Ram is the idol. Sorry, I'm not getting. आप क्या बोल रहे हैं लवली? Ram is the idol. Idol. Your alphabet was I, or was it? तभी बताइए आपका अल्फाबेट क्या था? आई था या जे था? आई. तो हु वाज जे? Okay, okay, Avantika, please have a seat. Yes. Ram, what you? Okay, lovely. But please repeat the sentence. What you have written? Ram is the idol. Is the idol. Okay. राम पहले तो देखिए इफ यू आर सेइंग आइडल तो या तो आप बोलेंगे कि राम इज आइडल या तो आप बोलेंगे राम इज एन आइडल बॉय. ओके you will not include the in this. Okay, okay, lovely. Is it understood? Ram is the idol. This is not the correct sentence. What it should be? Ram is idol. Okay. अच्छा इसे हिंदी में कैसे बनाएंगे? राम दुखी है. क्या है? राम दुखी. Lovely. Idle does not mean दुखी. It means आलसी. Okay. या फिर कोई काम नहीं करना भी idleness कहलाती है. Okay. Okay, lovely. Fine. Okay. दोबारा बनाइए sentence. Form the sentence again. Ram is idol. Yes. Okay. Remove the from the sentence. Fine. Okay. Very good, lovely. Nice try. Everybody, please have a round of applause. Very good. Yes. Who is going to come up next? Deepika, are you ready with your sentence? Yes, ma'am. Okay. Please come ahead. Yes. Ma'am, E. Seagull doing a exercise. Sorry, she girl doing doing exercise.
शी गर्ल। ओके दीपिका ध्यान दीजिए। ओके शी गर्ल कोई सेंटेंस नहीं होता है। ओके या तो शी या तो गर्ल। ओके सी हमने सीखा था कि कोई भी सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, है ना। और सब्जेक्ट जो होता है वो एक ही होता है, या तो आप शी बोलेंगे या तो आप गर्ल बोलेंगे। ओके Girl doing a exercise. ओके एक्सरसाइज इज नॉट द वर्ड, एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, E. ई। एंड हैव यू एवर रेड कि ए कहाँ पर यूज होता है? N. Girl doing an exercise. Okay, okay, remember that. Okay, class, please concentrate here. You all know the alphabets, है ना? Alphabet सबको पता है इंग्लिश के? So there are 5 vowels, right? See, you have 5 fingers in your hand और 5 fingers 5 vowels को display करती है. पहला vowel कौन सा है? The first one is यस ठीक है, इनको याद रखेंगे। ये जो 5 वर्ड्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, ए ई आई ओ, इनके साथ जब भी कोई वर्ड होता है स्टार्ट, जैसे हमने एक्सरसाइज बोला, तो आप एक्सरसाइज के साथ कभी भी ए नहीं लगाएंगे, यू विल ऑलवेज यूज एंड। ओके ध्यान रहेगा, जब भी कोई वर्ड स्टार्ट होता है लाइक ए ई आई ओ यू, इनसे कोई भी अल्फाबेट स्टार्ट होता है जनरली उसके साथ क्या आता है, यस ए या एन। And Yes, and what we use with any word which starts with a vowel, we use a or an. And okay, और जो rest of the consonants होते हैं like B, C, D, etc. जितने भी consonant होते हैं उनके साथ generally क्या use होता है? A. Yes, class. What is it? Which article is used with the rest of the with the rest of the consonants? It is A. Okay. Yes. Okay, Deepika, please repeat your sentence once again. Girl doing an exercise. Okay, but you also haven't placed is am are, आपने कोई helping verb भी use नहीं किया है ना? Girl is doing an exercise. Okay, fine. The sentence is okay, but आप ऐसे कह सकते हैं the girl is doing an exercise. Okay, the girl is doing an exercise. Okay, Deepika, इसको please correct कर लेना. Fine. Yes, ma'am. Okay, shall we move ahead? Okay, Deepika, please have a round of applause for Deepika. Coming up next, shall we have Good morning, ma'am. good afternoon, बच्चे. Your name, if I'm not wrong, you are Saloni. Saloni और वैशाली. Wait. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Saloni. वो वापस क्यों चली गई? मैंने उन्हें वापस जाने के लिए नहीं बोला था. I was asking for her name. If I'm not wrong, you're Vaishali. No, ma'am. No, ma'am. I'm so sorry. बच्चे, what is your name? Ma'am, Lakshmi. Lakshmi? Yes, ma'am. Oh, so sorry, Lakshmi. Okay, Lakshmi. What was your alphabet? What was your alphabet? It was F, right? है ना? Ma'am, अब आपने क्या सेंटेंस लिखा है? बताइए. ma'am, the bird is flight in sky. Is flight in sky. Okay. अब ध्यान से सुनिएगा. Okay, लक्ष्मी. Fly एक verb होती है और flight एक noun होता है. Noun, you know what is noun? Noun यानी संज्ञा and verb यानी क्रिया. Okay, तो flight अलग चीज है और fly अलग चीज होती है. Okay, you are not going to use fly in sky. Flight in sky का मतलब कोई सेंस नहीं बैठता है इसका. Okay, you are going to write the bird is flying in the sky. Okay, और फ्लाइट के लिए क्या यूज कर सकते हैं आप? अच्छा देखिए, फ्लाइट जो होता है ना, मेरी बात सुनो.
एक छोटी सी हिंट और देती हूँ, फ्लाइट जो होता है ना वो नाउन होता है, और नाउन जनरली जो सेंटेंस है उसके स्टार्टिंग में आता है या तो एंडिंग में आता है। ओके, अब कोशिश कीजिए। यू नीड 2 मिनट्स, आप सोचिए, तब तक मैं सलोनी का सेंटेंस ले लेती हूँ। ओके, आप सोचो। सलोनी, व्हाट वाज योर अल्फाबेट? Ma'am, L. एल। ओके। I am made a lemon. व्हाट वाज इट? इट वाज, पहले word repeat, word repeat. What was the word that we had written from L? That was, yes, what was it? It was lemonade. Saloni, repeat with me. It was lemonade. Ma'am, lemon. Yes, what was it? Lemonade. Lemon. Yes. एक और बार repeat कीजिए. What was it? Ma'am, I am No, no. bird. Repeat the word. Repeat the word first. What was it? Diamond. Lemonade. What was it? Saloni? Lemonade. Lemonade. Yes, lemonade. Lemonade. Yes. अब sentence बनाइए. And read the sentence what you have written. हिंदी में बनाइए, नो इशू। आपने सेंटेंस लिखा है? हैव यू रिटन द सेंटेंस? लिखा है? रीड कीजिए व्हाट यू हैव रिटन। I I am made a lemon. लेमनेड। Lemonade. ओके, एक और बार रिपीट कीजिए प्लीज। प्लीज रिपीट इट वंस अगेन। I made a lemon. ओके, सलोनी एक बार ध्यान से सुनिए। ओके, जब भी इज, एम, आर, वाज, वर, आप इन चीजों का यूज करते हो तो आपके साथ आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना होता है। ठीक है, मेड का मतलब पास्ट में हो गया है, बना चुके। ओके, तो आई एम मेड, मैं बना चुकी। पास्ट विल यू से आई एम, का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है दैट इज, ओके, मेक, एंड मेक के साथ आईएनजी लगेगा, दैट बिकम्स मेकिंग। ओके, अब बनाइए। अब क्या सेंटेंस बनेगा, आप रिपीट कीजिए। व्हाट इज द राइट सेंटेंस? Then I am making la वेरी गुड। व्हाट वाज इट? इट वाज लेमनेड। lemonade. लेमनेड। Lemonade. यस, अब एक बार दोबारा से सेंटेंस रिपीट कीजिए। I am making lemon in मेकिंग it. लेमनेड। Lemon it. लेमनेट नहीं, लेमनेड। Lemon in. ओके, यस, व्हाट इज इट? लेमनेड। ओके, अब एक बार ध्यान से सुनिए। वेरी गुड, वेरी नाइस ट्राई, वेरी गुड, एवरीबॉडी शुड क्लैप फॉर हर। अब सुनिए, जब भी हम ना, देखो दो तरीके की कुकिंग होती है। जब हम आग का यूज करते हैं, जब हम गैस का यूज करते हैं, तो जब हम कुछ बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ गैस या कुछ उसे पका के बनाते हैं तो वी यूज मेकिंग, मेक। ओके, और जब हम बिना गैस के कोई चीज तैयार करते हैं तो वी से प्रिपेयरिंग। ओके, समझ में आया? अब मुझे बताइए कि आप शिकंजी बनाने के लिए यानी लेमनेड बनाने के लिए मेकिंग का यूज करेंगे या प्रिपेयरिंग का यूज करेंगे? I'm making. मेकिंग। आप शिकंजी जो होती है, लेमनेड जो होता है, हम उसमें गैस का यूज करते हैं? No, ma'am. तो क्या यूज होगा? मेकिंग यूज होता है जब हम किसी चीज को विद द हेल्प ऑफ गैस या फिर किसी हीट की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, और प्रिपेयरिंग तब यूज होता है जब हम बिना गैस के, बिना इंडक्शन और वट एवर मीन्स उसके बनाते हैं, उसको उसके बिना कुक करते हैं। तो कौन सा यूज होगा बताइए? इज इट प्रिपेयरिंग
और मेकिंग। Class, am I audible to all of you? Class, am I audible to all of you? Class, am I audible? Yes, Saloni? Yes, तो we were discussing making और preparing. तो बताइए आप lemonade को prepare करेंगे या making करेंगे lemonade को? Prepare. Very fine. तो अब sentence बनाइए, अब सही sentence बनाइए. अब क्या बनाएंगे आप? I am what? I am but I am preparing preparing. क्या prepare कर रहे हैं? मैम नींबू पानी. हाँ, तो नींबू पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेमन. लेमनेड. लेमन यानी नींबू एंड दिस इज नींबू पानी, है ना? नींबू पानी और नींबू में अंतर होता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेमन एंड लेमनेड, राइट? यस मैम. हाँ जी, तो बताइए. यस मैम. रिपीट द सेंटेंस, सलोनी. आई एम And I am preparing lemonade. Okay. Okay, Saloni, very fine. Yes. Thank you for coming, Saloni. Please get back to your seat. Yes, Lakshmi, have you thought of a sentence? Yes. आपने Yes, बनाया ma'am, कोई बना लिया. sentence? Yes, ma'am. Yes, बताइए. Ma'am, this bird is flying in place. Ma'am, this bird is flying in sky. फ्लाइटिंग. आई टोल्ड यू. लक्ष्मी, देखिए, वर्ब के पीछे आईएनजी लगता है, नाउन के पीछे आईएनजी नहीं लगता. ओके, ठीक है. कभी भी कोई वर्ब होती है ना, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में क्लियर करवाऊंगी कि नाउन और वर्ब के बीच में क्या अंतर होता है. आई विल बी टेकिंग इट इन द नेक्स्ट सेशन. बट देखिए, अभी के लिए सेंटेंस क्या बनता है? अच्छा, आप बर्ड की फ्लाइट का मतलब होता है उड़ा, जो कोई भी चीज जो उड़ रही है, दैट इज द फ्लाइट. ओके. अब ये बताइए, क्या केवल बर्ड फ्लाइट करती है? देयर आर आल्सो अदर थिंग्स दैट फ्लाइट, है ना? फ्लाइट को हिंदी में बोलते हैं उड़ान. ओके क्लास, राइट इट, उड़ान.
Class, am I audible to you? Yes, Lakshmi, am I audible to you now? Yes, ma'am. Okay. As I told you, फ्लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? We say उड़ान. Okay. अब हिंदी में एक सेंटेंस बनाइए उड़ान से. बनाइए उड़ान से. मैम चिड़िया मैम अपने आप पे बना सकते हैं. Yes. Anything I already told you from any sentence. जरूरी नहीं आप पिक्चर से देख के बनाए. Any sentence. Yes. मैम चिड़िया आसमान में उड़ान भरती है. Okay. उड़ान भरने को क्या कहते हैं? We say take off the flight. Okay. Take off the flight. Okay. Lakshmi, everybody please write it. फ्लाइट को हिंदी में कहते हैं उड़ान और उड़ान भरने को कहते हैं टेक ऑफ फ्लाइट. O-double-F. ओके. डू यू वांट मी टू राइट? या आप लिख लेंगे? उड़ान भरने को इंग्लिश में कहते हैं टेक ऑफ. O-double-F. टेक ऑफ फ्लाइट यानी उड़ान भरना. मैम हो गया. क्लास मैम डन. अब लक्ष्मी अब ट्राई कीजिए. टेक ऑफ फ्लाइट की हेल्प से आप एक सेंटेंस बनाइए. नहीं मैम द बर्ड इज टेक ऑफ फ्लाइट. इज. देखिए आई टोल्ड यू जहाँ पर इज एम आर आता है वहां पर आईएनजी भी आता है ना. तो टेक फ्लाइट. फ्लाइट वर्ब है. फ्लाइट में आईएनजी नहीं आएगा लेकिन टेक मतलब लेना. लेना में काम हो रहा है ना. दैट इज वर्क. टेक मतलब लेना. टेक के साथ आईएनजी लग सकता है तो क्या कहेंगे? टेकिंग. ओके. तो क्या सेंटेंस बनेगा? द बर्ड इज टेकिंग ऑफ फ्लाइट. Yes, very fine. Nice try. Very good, Lakshmi. Everybody, please have a round of applause for Lakshmi. ऐसे ही try करना है लक्ष्मी. Okay? Very good. Yes. Jasmeet, can you please come ahead? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Jasmeet. How are you doing? I'm fine, ma'am. हाँ जी. तो what was your alphabet? I guess it was G. है ना? J for Jasmeet has got G for what? Glee. है ना? Yes. अब अपना सेंटेंस बताइए. Ma'am, today I am very glee. आई एम वेरी ग्ली. ओके. अच्छा. अब ध्यान दीजिएगा. मैं बहुत खुश हूँ. दिस इज नॉट ग्ली. इट शुड बी आई you can say I am glee, but जो correct बनेगा this is also fine, but you can also say today I am feeling glee. Okay? वो भी ठीक है जो आपने लिखा है I am glee, but आप ऐसे भी कह सकते हैं today I am feeling glee. Very good. Nice try, Jasmeet. Very good. Everybody, please have a round of applause for Jasmeet. Okay, fine. Let us move ahead. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, बच्चे. Your name?
मैम माय नेम इज अवंतिका यादव। अवंतिका। यस अवंतिका, बताइए। मैम शी इज अ वेरी ह्यूमन। शी इज अ वेरी ह्यूमर। ह्यूमर देखिए, एज आई टोल्ड यू, ह्यूमर जो है दैट इज ऑल्सो अ नाउन, ठीक है, वो भी वर्ब नहीं है। शी इज ऑल्सो अ ह्यूमर, यानी वो भी बहुत मजाक है। हिंदी में इसे ऐसे बोलेंगे, शी इज ऑल्सो ह्यूमर, यानी वो बहुत मजाक है। इज इट द राइट सेंटेंस? अवंतिका, इज इट द राइट सेंटेंस? हिंदी में हम इसे बिल्कुल सही ऐसे बोलेंगे, वो बहुत मजाक है। मैम इनकी छुट्टी का टाइम हो गया। ओके मैम। मैम आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मुझे ना प्लीज आप जो अटेंडेंस है वो प्रोवाइड करवा दीजिए। मैम एम आई ऑडिबल टू यू? मैम एम आई ऑडिबल टू यू? Avantika, we will be taking your sentence in the next session. Okay? Yes, class. Everybody, please listen to me. I have informed your teachers and your authority कि आपका जो session है वो 2nd of November को होगा. Fine? तब तक आपको क्या करना है? Listen to me carefully. आपने ये सबने listen to me first. Listen to your homework first. पहले सुन लीजिए। आपने जितने भी अल्फाबेट्स लिखे हैं उनसे आपको एक एक सेंटेंस बनाना है, एंड रैंडमली मैं किसी से भी अल्फाबेट पूछ लूंगी. फाइन? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास? यस मैम। ओके क्लास, गुड बाय. सारे अल्फाबेट से गुड बाय, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. Goodbye. बाय.